subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So I was like, Umar, गाना तो मिल गया लेकिन अब करेगा क्या? Because I never acted, right? So I was like, तो मैं गान तो 2 दिन पहले I called Asim. I was like, bro, I got the song, but the thing is कि अब करना क्या है? मैं बोलूंगी मेरी सिस्टर सोमी बनाएगी फॉर श्योर. मैं तो बोलूंगी आसिम को बोलेंगे, उमर बोलेगा आसिम को बना. आसिम का रिएक्शन भी ऐसा था कि he was like, you've done a really good acting in this. And I Big Boss के लिए actually they called me for this OTT. I think 2 महीना पहले I got a call about this. Hello guys, today we have Umair Riaz and Sabah Khan. We'll be talking about their new song गुनाह कर दे. So पहले तो मुझे हमने इसका ट्रेलर देखा, आप लोग के सोशल मीडिया पर भी देखा. आप लोग को इसके ट्रेलर से कैसा रिस्पॉन्स आया? So response has been fabulous. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. जिसने ट्रेलर देखा है, everybody is appreciating our जोड़ी and chemistry and the song. So yeah, we are very excited about it. And now what about you, man? What kind of response you getting? Response तो अच्छा रिस्पॉन्स है, बट इट्स दिस लाइक कि गाना बहुत डिले हो गया. एक्चुअली हमने जैन में शूट किया था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हर्डल्स थी, बट फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि इट इज रिलीज. बिकॉज इसमें जो द स्टोरी लाइन है ना, व्हेन यू see the whole song, it's very intense. और अभी तक I've seen whatever songs you see, those are mostly like singer oriented, but you don't have that intense story based on that. Song will go on, but वैसा नहीं है कि, but इस song में ऐसा है कि there's so much of emotions and मतलब इसमें there's a happy emotion, there is love, there is crying, and there's a lot of emotion, and I really wanted this song to release because I could show my versatility in this song actually. तो उसकी वजह से just because, and the trailer is looking very nice and लोगों का भी अच्छा रिस्पांस आया है उससे. आपको कैसा लगा? मैंने भी ट्रेलर देखा और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगा है. एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ट्रेलर में जितना हम देख पाए स्टोरी, ऑफ कोर्स हम पूरे गाने में ही देख पाएंगे, जितना देख पाए कि ड्रीम्स आर माय फर्स्ट प्रायोरिटी. तो आप लोग की लाइफ में अगर मैं रियल लाइफ में आपसे पूछूं, ड्रीम और रिलेशनशिप, right now what is your priority? As far as I am concerned, I believe in having balance. So मेरे लिए फैमिली भी इतना इम्पोर्टेंट है उतना ड्रीम्स भी. So I like to keep it कि वो बैलेंस बना रहे. So ज़्यादा जो प्रायोरिटी देंगे, I mean अगर आप अपने करियर को बहुत प्रायोरिटी देंगे तो आपको अपनी फैमिली लाइफ भी खलेगी कि अरे आप फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे. So आपको बैलेंस होना बहुत जरूरी है for me. So yeah, I mean Umar can say अभी Umar को क्या, yeah. आपके लिए क्या है प्रायोरिटी, रिलेशनशिप और ड्रीम? I think Sabha is rightly said. I think life में there will always be a lot of things. You can't be just focusing on one thing. Like अगर आप अपने career oriented, if you're career oriented, but you have to balance like with your family, with your loved ones. You can't be just like, I'm just focused in my career. So I don't think that's a healthy lifestyle, and that will never help you grow. Because if you are totally in one thing and you're just ignoring your loved ones who care for you, I don't think I will live my life like that. So for me, as Sabha said, so it has to be a balance. So it's very difficult sometimes, but practically nahi ho pata. But aisa I think everybody should be like, loved ones, love life, family, your career. You should give time. Try to give time to everything. Of course, you should be career oriented. You should be not like if you have broken up in a relationship and you went out drinking and you're smoking and you're just harming your body just because you broke up. I think you need something you can focus on. So it should be career or your family. So not one thing you should focus on. So I think सबको लेके चलना चाहिए साथ में. ऐसा कभी आप लोगों ने किसी रिलेशनशिप में ऐसा कभी फेस किया है या किया है कि ड्रीम्स को पहले प्रायोरिटी दी हो रिलेशनशिप के आगे? जानकर नहीं, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन कभी ऐसा हुआ? फॉर मी, मेरे लिए हमेशा से ना करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और मेरे रिलेशनशिप्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रहे.
So I think मैंने इनिशियली जब आप चाइल्डहुड के बाद आप टीन एज में आते हो तो उस टाइम पे ना प्यार का बोझ बहुत ज्यादा होता है एंड यू रियली गो फॉर इट कि हाँ करियर से ज्यादा आप प्रायोरिटी देते हो अपनी रिलेशनशिप को. बट जब मैं धीरे धीरे ग्रो किया है, लर्न किया है, आई बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने करियर को भी बहुत इंपॉर्टेंट दो. नाउ आई एम इन दैट स्टेज की वेयर आई फील कि ठीक है रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बट द सेम टाइम आपको करियर को इम्पोर्टेंट देना चाहिए, बीइंग अ गर्ल ऑल्सो. सो या आई थिंक इनिशियली जब मैं टीन एज में थी तो यू आप अपनी मिस्टेक से लर्न करते हो एंड आई फील दैट टाइम आई माइट हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू माय रिलेशनशिप. सो आई थिंक धीरे धीरे इंसान अपनी अपनी चीजों से सीखता है एंड अपनी मिस्टेक से सीखता है. या आप बताइए. I think life में ऐसा हुआ है कि where I had to choose a relationship, or it wasn't like either you do, but it was like now you need to commit, or you need to take this relationship forward into like marriage or something. So I have been through that stage, but it was like it was too early for me. For me, I thought it is not something now. For me, I thought marriage was something which will bound me and I can't go forward. That is what I was thinking like 2-3 years down the 26, 27. You and I was always career oriented, as in I wanted to do something for me and for my family, to do a name in any field, not only here. Like I'm a doctor, so I was like I need to focus on this because this is gonna take me higher. If I commit and go for marriage, I think then I have to, because then I'm not alone. I need to think of the other person, right? Because that's my better half. So so only half of the priorities will be on me. Half has to be on my wife, right? That's how husband and wife are. You got to compromise. I think marriage is compromise. And I've seen so many bad marriages in my life that and I was like, I am never doing that. So there was a point when then I had to leave those people who I loved, just so that I could move on in my life. But now I realize, you go back, you say you might have done this, but I think what has to happen will happen. So I think it's ऐसा point आया था, but I actually chose, I want to move forward in my life, in my passion. So yeah, I would say that. And talking about you two, your chemistry, your equation, how was it? How was the whole experience shooting this song? Mine was like, as far as I am concerned, again, I can talk about me. It was fabulous. मुझे बहुत अच्छा लगा. Like the whole team was like एक positive vibe आ रही थी. जब मैं उमर से मिली तो I was like कि कैसा होगा experience, because I was working with him for the first time. But पूरा हमने बहुत अच्छे से साथ में काम किया. हमने बहुत सारे सीन को रिहर्स किया था कि इस तरह से होगा. डीप में सोचा था हमने. सो जो ओवरऑल आउटकम आया है वो बहुत अच्छा आया है. हमारी परफॉर्मेंस, मैं भी उमर को मैंने देखा कि ही वाज डूइंग एक्टिंग वेरी फैबुलस. बहुत अच्छे एक्टर लिखता है. ही इज अ डॉक्टर नाउ, विल बी एक्टिंग. सो बहुत मजा आया उमर के साथ. उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. कई सीन में मैंने बोला ओह माय गॉड, ही इज सच अ गुड एक्टर, टैलेंटेड एक्टर. सो या मजा आया, बहुत मजा आया. दीपेश जो है वो सिंगर है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से सॉन्ग गाया है. आसिफ जो है जो हमारे प्रोड्यूसर है और दीपेश है, सबकी होल जो एटमॉस्फेयर, राज हमारे डायरेक्टर है, तो सबका काम जो इनपुट है वो बहुत निखर के आया है एंड आई एम रियली हैप्पी विद द आउटकम. कहते हैं ना कि जैसे उमर ने बोला कि हमने थोड़ा टाइम लग गया इसको रिलीज होने में, बट कहते हैं ना सब्र का फिर फल मीठा होता है. तो आई थिंक सबको बहुत पसंद आएगा हमारा काम. आप बताइए आपकी क्वेश्चन और केमिस्ट्री कैसी थी? Question, I think Sava actually had met my family when Asim was in Big Boss. So pictures वगैरह भी खींचे थे. तो मेरे को एक so I knew from them they were like she's very sweet and so मेरे को एक पता था okay कि okay she's someone I'll be comfortable with, because मैं ऐसा था कि okay I got this song fine, I was like ठीक है गाना मिल गया. But now I was like when I was driving morning, I still remember 6 बजे 7 बजे का टाइम था and I had to go to Mud Island. I think वहीं पे था, मलाड के आगे था Mud Island. तो वहाँ पे I was driving, तो I was like उमर गाना तो मिल गया लेकिन अब करेगा क्या, because I never acted, right? So I was like
तो मैं गान तो 2 दिन पहले I called Asim. I was like, bro, I got the song, but the thing is कि अब करना क्या है, मतलब I know I can do it, but I don't know कि, और ऊपर से एक दिन का शूट था टोटल, और बजट जितना कंस्ट्रेंट था कि मॉर्निंग से आपको रात तक करना है और एक ही दिन में गाना शूट करना है, और जो स्टोरी थी उसमें इतना इमोशन था कि मतलब Oh my God, seriously. लवर बॉय है उसमें, बाद में उसका ऐसा हो जाता है ये, तो मतलब मैं सोच रहा था कि हाँ तो बोल दिया, बट कहना will I be able to pull it off? लेकिन फिर वहाँ पे भी सबा मिले, and you know she has a very good vibe about herself, तो and I knew कि she is an actor, उन्होंने टीवी सीरियल में भी काम किया है, उनका जब सीन आता था तो she would just pull it off. जब पहला सीन जो है वो सबा से ही शुरू हुआ, एंड उन्होंने एक दो शॉट में ही दे दिया, तो मेरी बारी है, तो आई वाज लाइक अब मैंने कैसे करना है, बट आई डोंट नो समहाउ गॉड्स मर्सी वाज ऑन मी आई गेस, बट वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि यू नो दे वर लाइक व्हाट हैव वी गॉट दिस एक्टर इन बिकॉज़ ही डजंट नो एक्टिंग, बट ऐसा हुआ कि वी कुड पुल इट ऑफ फाइनली. और ऐसा सभा के साथ भी ऐसा नहीं था कि यू नो I was meeting her for the first time, but बहुत फ्रेंडली सा था और बहुत मजा आया हमें, तो बहुत हेक्टिक था, सुबह 7 से रात का 12-1 बज गए थे, बट ऐसा था, बट वी वर हैप्पी दैट कि हम लोग एक गाने में और एक ही दिन में इतनी मेहनत कर पाए, और इट वाज लुकिंग वेरी गुड ऑन द स्क्रीन आल्सो. सो आई थिंक मेहनत व्हाटएवर एफर्ट्स वी डिड, वो जो हमने जब वीडियो सॉन्ग देखा, तो आई थिंक वी वर लाइक यू नो इट वाज वर्थ इट. है ना, आपने आसिम का नाम लिया है, तो आसिम का क्या रिएक्शन है ये टीजर देख के, ट्रेलर देख के? आसिम वाज लाइक कि इसके आई थिंक अब तो मुझे लगता नहीं हॉस्पिटल में काम कर सकता है इसके बाद. but I was like नहीं, अभी pandemic is there, so you're always covering, but sometimes people do recognize you, but it's like they just point finger at me. I'm like no, not that. so that I can be because that profession wants really, you got to be very professional there. You can't be having like pictures or something. But तो आसिम का reaction भी ऐसा था कि he was like, you've done a really good acting in this, and I don't know you could do it, but you've done it, and I know you'll be able to pull it off in further projects also. So ऐसा था. And there was a time जब आसिम and your family was very worried about you. अभी भी वो phase खत्म नहीं हुआ है, आपको बार-बार when you were treating the patient, और आपको भी कोविड हो गया था back to back 2 बार, तो वो एक फेज था. एंड ये पैंडेमिक कितना टफ रहा है आपके लिए? पैंडेमिक एक्चुअली आई वुड से कि आई वाज सो टेरिबल. स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि एकदम से जब लॉकडाउन हो गया एंड यू वर टोल्ड कि यू हैव टू कम, एंड आई वाज लाइक कि एंड ऑल वी कुड हियर इज पीपल डाइंग इन अदर कंट्रीज, एंड आई गॉट calls कि what do you want to do, and I was like I cannot back off, right, because I think we always treat patients जो हमेशा कोई HIV है, कोई हेपेटाइटिस है, तो ऐसा नहीं है कि रिस्क जो नहीं रहता है, पैंडेमिक होता है. So I was like, I think, and you got to have faith in God कि of course if you're treating people, and of course God is going to show mercy on you as well. तो मैं काम लगा रहा, I got infected also, but ऐसा हुआ कि with God's grace ठीक हो गया. फिर वैक्सीन, फिर I mean I used to do COVID duties, वैक्सीन वगैरह हुआ, but I remain healthy most of the time. I think 1 साल हो गया almost pandemic को, so I think I could pull it off आराम से, मतलब because I had to do it because I couldn't just leave Bombay and go, because I think that is not what my job we have been told to do, right? In a difficult situation, just run off. So we've always been told that this profession was always to, you got to help others, other people has to be first, then you got to think about yourself. तो वो एक innate है हमारे में कि ऐसा नहीं है कुछ प्रॉब्लम हो तो भागने का है, तो इसीलिए तो वैसा एक कल्चर है हमारे in our profession, तो इसीलिए चल गया सब कुछ. जैसे सबा ने बोला कि एक डॉक्टर इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, so I just want to know, ये डॉक्टर टू एक्टिंग की जो जर्नी है, when you decided like you want to act and you want to be part of this industry also? I think क्या रहता है, when you're growing up, family, it's not like I never, we were not like a rich family, so we had everything, but the thing is, it wasn't like I could pursue my passion. I was like, नहीं, मेरे को तो
एक्टर बनना है, अच्छा पापा मैं एक्टर बनना है, मेरे को बॉम्बे भेज दो तो सब हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या था कि मैं थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, मतलब आई वाज पढ़ाई में थोड़ा फोकस रखता था, और आसिम नहीं रखता था फोकस, तो थोड़ा मस्ती करता था। तो उससे क्या हुआ कि पर मैं ऐसा होता था, मैं फैशन टीवी बहुत देखता था, मतलब छुप के ना घर पे, कोई नहीं होता था, फैशन टीवी देखता था, एंड आई यूज्ड टू वॉक लाइक दैट कि मेरे को भी ऐसा करना है। एंड मैं ऋतिक रोशन को देखता था, मेरे को बहुत इंस्पायर होता था कि मेरे को भी ऐसे लंबे बाल रखने हैं, ऐसा है। उनका बर्थडे 10 जैन को होता था, मेरा फर्स्ट को होता था, तो आई वाज लाइक अच्छा हम जनवरी में, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके दिमाग में इंस्टिल होती जाती है ऐसे देखते। बट ऐसा हुआ फिर 12th के बाद यू वांट टू परस्यू MBBS की, I thought because education is gonna bring back money and security for me, so I pursued my MBBS किया। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं आई वुड शिफ्ट टू इंग्लैंड, एक्चुअली ऐसा नहीं था कि कभी बॉम्बे आना है, तो मेरे को इंग्लैंड जाना था, बट वो नहीं हुआ। उसके बाद जब MBBS खत्म हुआ, फिर मेरे को लगा नहीं, अब मेरे को ना, अब आसिम यहाँ पे था, फिर बिकॉज मिडिल ऑफ माई MBBS आसिम केम टू बॉम्बे, तो वो करने लगा अपना उसका शूट वगैरह, तो मैं उसको देखा था, आई वाज लाइक कि एक नाउ यू हैव समवन देयर, सो एक रास्ता मिल गया है, तो वो जाना है वहां पे, बट वो कब जाना है वो मुझे पता नहीं था। तो MBBS खत्म हुआ, उसके बाद मैंने बोला यार करना है, बट मैंने सोचा कि अभी खाली MBBS में आई डोंट थिंक सो कि अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं रहेगा, बिकॉज बीच में छोड़ दूंगा। तो मैंने सोचा नहीं, एक काम करते हैं, अपना आगे स्टडी करते हैं, उसके बाद जब जॉब, बिकॉज जब जॉब होगी जब देन आई विल डू दैट। तो वो मैंने 3 साल फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बोला कि अब हो गया काफी, अब आई नीड अ ब्रेक। अब मैंने 10 साल दे दिए हैं, अब मैं थोड़ा ब्रेक देना चाहता हूँ, और आई वांट टू कम टू बॉम्बे। तो इनिशियली तो ऑफ कोर्स न्यू सिटी स्ट्रगल रहता है, ऑडिशन जाते हो, ये वो बहुत कुछ रहता है, बट मेरे को हमेशा से वो था कि हाँ मेरे को करना है, और मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखना चाहता था कि मुझे लगता है मैं अच्छा लगूंगा, बट somehow सब चीजें everything initially things are scattered everywhere and you never know कि आप people will recognize you where आप चल रहे हो, but somehow things fall in place, and वो जब आप retrospect पे जाते हो you realize I don't know how it happened, but it just happened and I'm very happy to be here. And also fans आजकल गानों पे रील्स बनाते हैं, तो उससे एक काइंड ऑफ फीडबैक आप लोगों को डायरेक्ट मिलता है कि फैंस को कितना पसंद आ रहा है आप लोग का सॉन्ग। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, कितनी रील्स बनने वाली है इस गाने पे? अरे बहुत सारी बनेगी, बहुत सारी, बिकॉज आप प्रोजेक्ट देख के आप कर सकते हो प्रोजेक्ट की कैसा रिस्पॉन्स आएगा, एंड इंशाल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छा होगा, बिकॉज हमने खुद ने बहुत एंजॉय किया था, गाने को सुना था ना, लाइक बहुत एक बार सुनते ही पसंद आ गया था सॉन्ग। तो आई थिंक रील्स तो बहुत सारी बनने वाली है, होपिंग की बहुत सारी बनेगी, और बनवाएंगे, अगर नहीं भी बनी तो बनवाएंगे बिल्कुल बनवाएंगे। किससे बनवाएंगे? आशिमा, सबसे पहले आशिमा आपसे बनवाएंगे। आशिमा ने सबसे पहला इंटरव्यू लिया, तो आई थिंक विल स्टार्ट आशिमा टू बी ऑनर। Okay, you help me. I don't know how to make reels. I'm not at all active, but you guys will help me. I will definitely do that. Yeah, but yeah. apart from me, from your family, from your friends, किस से reels बनवाने वाले हो आप? So मैं बोलूंगी मेरी सिस्टर सोमी को, सोमी बनाएंगे फॉर श्योर, मैं तो बोलूंगी। I think Sabah is very active. Ashima Sabah is very active into the gang activity. Sabah का proper gang है। मैं उमर को बोलती हूँ, उमर तो बनाएगा, उसका खुद का सॉन्ग है, मेरा उमर का तो कंफर्म है, सोमी का है, एंड आसिम को बोलेंगे, उमर बोलेगा आसिम को बनाएगा। बाकी मैं जो मेरे 1-2 लोग हैं, और जो सभा के 10-15 लोग हैं जिसके एंड आप अभी आसिम और उमर आप लोग भी साथ में काम कर रहे हो, नई चीज आपकी यूट्यूब पे भी आती है, तो कुछ और भी आने वाला है? जी हाँ, पंजाबी सॉन्ग आए कुछ, 1-2 एक्चुअली सेम ही हो गया, सभा का पंजाबी सॉन्ग है, मेरा पंजाबी सॉन्ग है, आप सभा और मेरा साथ में एक हिंदी सॉन्ग है। आई थिंक इसके बाद मराठी और भोजपुरी में भी ट्राई करना पड़ेगा। भोजपुरी तो गॉड, क्योंकि पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, आप you gotta try every language, I think so. Every language, yeah, we gonna try every language for sure. सवा, हम उमेर को इस सीजन बिग बॉस में क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट सीजन भी वो आए हैं और
आपने भी बिग बॉस किया, आसिफ ने भी बिग बॉस किया है, तो मैं बिग बॉस ओटीटी शुरू हो चुका है. एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई यू आर नॉट इन दिस शो, या आपको ऑफर आया बिग या बॉस नहीं के आया? एक्चुअली बिग बॉस के लिए एक्चुअली दे कॉल्ड मी फॉर दिस ओटीटी. आई थिंक 2 महीना पहले आई गॉट अ कॉल अबाउट दिस, बट मैं ऐसा था कि आई वाज लाइक कि मैं अगर जाना है तो मैं टीवी वाले पे जाऊंगा. बट थोड़ा सा मैं एक्चुअली अगस्त में ऐसा थोड़ा एक का प्रोजेक्ट लाइन था तो मैं कमिट भी कर दिया था. लेकिन एक रीजन ये भी था कि मेरे को ना ऐसा टीवी पे जाना था, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब ओटीटी पे दे वर ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आई वाज लाइक maybe next time I might go in the OTT only, but I was like, let me see. Again, if it turns out to be good, I'll tell them myself कि okay, I want to be there. So I was like, let me just see, because मेरे को जल्दी में कुछ नहीं करना है कि Big Boss आया है तो let's just jump into it. Because TV of course 10 साल से चल रहा है, TV का जो TRP, I don't think any show in India can match that. So of OTT का, if the results are good, I mean, I think everybody would love to be there. I would love to be there. Inshallah next time also. तो आपके पास तो बिग बॉस के इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, यहाँ पे देखिए सभा है और आसिम है, तो इन लोग से आगे पीछे जो सर्कल है वो सब बिग बॉस वाले ही हैं. तो आई थिंक सबसे मैं थोड़ा सब कुछ पूछ लूंगा, when I have to. Umar is just waiting for the right time and he's going to go and going to win the show. But Yeah. I am waiting for the right time to go, not to win, but to go inside the house. But मतलब कि अभी मैंने इस बार जब OTT का देखा है ना, I was like, क्या मैंने सही किया कि नहीं किया? But I was like, it's okay, when it has to come to me, when I need to be in that right mind. Because Big Boss के लिए you have to make that mind कि हाँ मेरे को जाना है वहाँ रहना है. तो मैं उस वक्त उस जोन में नहीं था. मैंने कहा ठीक है देखेंगे, मेरे को जल्दी नहीं है. तो let's see next year जब भी होता है, next होता नहीं होता, I don't know, but let's see. No hurry. Okay, now before ending this interview, गाना रिलीज हो रहा है, नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है? I think मैं तो excited हूँ, nervous से ज़्यादा मैं भी excited हूँ. I'm very excited actually. Z Music पे होने वाला है. It's a big label and I mean we can't be more happy, I would say. और finally ये release हो रहा है. Ashima, I would say गाना release हो गया है. I think we are happy in that. आगे क्या होगा वो अब that's on the audience actually. बाकी हम खुश हैं कि हमने अच्छा काम किया और it has come out as a good video. Now people will show their reaction. Yeah, that's what I was saying. Inshallah, it's going to be good. What do you like to say to the audience for this song? I would like to say कि आप लोग प्लीज इसको देखें और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और रील्स बनाइए और हमें टैग कीजिए और जिसका सबसे अच्छा लगेगा रील फॉर श्योर हम उसको पोस्ट करेंगे एंड गो टू शो लव. अभी ये बोलना चाहूंगा कि 11th अगस्त को है, बहुत मेहनत की है. इट्स अ वेरी तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और वॉच दिस सॉन्ग, शेयर कीजिए और रील्स, आई मीन रील्स का ही जमाना है तो आई वुड से प्लीज रील्स बनाइए. Thank you so much guys and all the best for the Thank you Ashima for having us. Thank you Ashima. Thank you guys. Thank you. Bye. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.